Good morning to all the students of Dr. B.R. Ambedkar Government College, Bhilara. Students, today we are going to take another poem, After Apple Picking, written by Robert Frost. Before I go to the text of this poem, I tell you that the Robert Frost, an American poet, known for his deceiving simplicity. Here the deceiving simplicity means his poems look or seem to be very simple from outward appearance, from surface, but when we go and we sink into the deep of the text, we find that this is not simple, it has deep meanings. Means outwardly these are simple but inwardly contains a great meaning. So these poems can be brought under the classification of allegory too. Means what meaning it shows has different from what it really wants to tell. So first of all, I read the text and then I explain the whole poem. My long two-pointed leathers sticking through a tree toward Heaven Hill, and there's barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough, but I am done with apple picking now. A sense of winter sleep is on the night, the scent of apples I am drowsing off. I cannot rub strangeness from my sight. I got from looking through a pane of glass. I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. But I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every fleck of russet showing clear. My step arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of ladder round. I feel ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from cellar bin the rambling sound of load on load of apples coming in, for I have had too much of apple picking. I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 of fruit to touch, cherries in hand, lift down and not let fall. For all that struck the earth, not matter if bruised or spiked with stubble, went surely to side press heap, as of no worth. One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it's. Were he not gone, the woodchuck could say whether it's like his long sleep, as I describe its coming on, or just some human sleep. This poem set in the New England. It is a pastoral poem and set in the New England in the season of autumn, when the poet is busy in apple picking. So here the poet wants to say that my long two-pointed leathers sticking through a tree. Ladders sticking through a tree. Here the poet is doing his work of picking apples which are hung by the boughs of a tree. He is picking apples from a tree, and how does he reach that height? Through the ladder. A ladder, a wooden ladder, a type of stair, मूवेबल स्टेयर. सो द पॉइंट, उसकी जो सीढ़ियों के जो पॉइंट है, जो ऊपर के हिस्से हैं, वो आकाश की तरफ है और उनके ऊपर चढ़कर वो पेड़ से एप्पल तोड़ने का काम कर रहा है, पिक करने का काम कर रहा है. टवर्ड हेवन, या हेवन का मतलब स्काई. हियर द हेवन मीन्स उसकी जो सीढ़ियां है लकड़ी की, उसके जो ऊपर के जो पॉइंट है, जो सबसे ऊपर के पॉइंट जो किसी चीज के सहारे रखकर अपन चढ़ते हैं, उनकी जो दिशा किस तरफ है? उनका मुंह हेवन की तरफ है, स्काई की तरफ है. इसका मतलब यह है कि ही आल्सो वांट्स टू शो हिज डिजायर टू रीच द हेवन, टू गो टू द हेवन थ्रू द सिंबल ऑफ दिस वुडन स्टेयर. एंड देयर इज बैरल, एक बैरल भी है, बॉक्स है. बैरल जो लकड़ी का बॉक्स होता है, दैट आई डिडंट फिल. हियर द पोएट सेज दैट ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क for a long time, but still he has not been able to fill the box
completely. He has not filled it completely. The box is empty till now. He has not yet completed his work fully till now. Beside it and beside it. And there may be 2 or 3 apples I didn't pick up from some bough. He has picked many apples from the boughs, but still there are 2 or 3 approximately, not fixed, but approximately 2 to 3 apples are left picked. 2 या 3 एप्पल जो हैं वो तोड़ने से रह गए हैं, पिक करने से रह गए, मीन्स उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है. वो एप्पल पिकिंग करने का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है. But I am done. He says that my work is not over, but I am tired. I got tired. Now I do not want to pick apples anymore, because my heart gives me no permission, because I am fully satisfied with the work which I have done till now. And now I want to go to my resting place to have some peace of sleep. But I am done. Here the done means done with. When we use done with, it is used in many circumstances. When I say I am done with, suppose I am eating food and I say I am done with, means I have fed up. मेरा पेट पूरा भर चुका है. एंड अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वी से दैट वी हैव डन विद इट, मीन्स हम उससे ऊब चुके हैं. तो उसी तरह कवि जो है एप्पल पिकिंग के काम से ऊब चुका है. नाउ ही वांट्स टू गिव सम स्टॉपेज to his work which he has been doing for last many hours. A sense of winter. Here a sense means smell. You know, the beautiful smell which we call fragrance. When he picks apples and when it breaks or goes off, when he takes it apart from tree, it spreads the fragrance of apples through the wind. The fragrance of apple is spread all over the atmosphere, in the wind, and when he smells such a beautiful, such a fragrance of the apples is on. Winter का मतलब है शीत ऋतु. A sense of winter. एक तरफ तो एप्पल की अच्छी सी स्मेल आ रही है और दूसरी तरफ जो विंटर का मौसम है, उस विंटर के मौसम के प्रभाव के कारण चारों तरफ नींद का माहौल छाया हुआ है. हियर नींद का माहौल का मतलब है द विंटर इज सो चार्मिंग, मेकिंग हिम फील हैव सम स्लीप, बिकॉज द एसेंस ऑफ विंटर टेलिंग हिम टू स्टॉप द वर्क and have some kind of rest. Is on the night. चारों तरफ जो है विंटर की वजह से नींद का माहौल छाया हुआ है. The scent of apples. और उसके साथ ही विंटर के साथ ही एप्पल्स की जो सेंट है वो बिखरी हुई है. एप्पल की जो सुगंध है वो बिखरी हुई है. I am drowsing off and the poet says that as I am already tired because of apple picking, and on the other hand this scent of apples making me drowsy off. ये जो थकावट और जो ये एप्पल की जो खुशबू है ये मुझे सुलाना चाह रही है, उसकी वजह से उसको नींद महसूस हो रही है. I cannot rub. रब का मतलब कोई चीज रगड़ कर हटाना. Strangeness. Strangeness एकदम कोई अनोखापन. From my side. And you know, when we feel sleeping, when we feel sleepy, what we feel? We cannot see anything clear. Nothing is clearly visible to eyes when we feel sleepy, because we can see only the half vision, because we are not fully conscious about anything, each and everything, and that's why we see things only the half form of something that is in front of our eyes. So here the poet is also feeling sleepy and his vision is blurred. He cannot see anything clear. That is why everything that he sees in his front of his eyes, everything seems to be strange. So he tries to rub his eyes so that he can see clearly, but he is not able to remove this strangeness from
his eyes because the effect of winter and overall the effect of the scent of apples is too much upon his mind that he cannot see anything clear, but he find only strangeness before his eyes. From my sight I got from looking through a pane of glass. पेन होता है खिड़की का जो शीशा होता है, उसको पेन कहते हैं. एक्चुअली उसकी आंखों के सामने ये स्ट्रेंजनेस आई कैसे? देयर वाज ए ट्रॉफ एक पानी का होद होता है जिसको अपन कुंड कहते हैं, जिसके अंदर से जानवर पानी पीते हैं. और विंटर के मौसम में वहां उस पानी के ऊपर जो है बर्फ की परत छा जाती है. और जब कवि ने जब वो बर्फ की परत देखी तो उसने उस परत को उठाया और उस परत के माध्यम से, जैसे अपन किसी कांच के माध्यम से कैसे देखते हैं, उसने उस कांच को उठाया और उस कांच को अपनी आंखों के सामने रखा और ऐसे पूरी चारों तरफ देखा. तो आप सफेद बर्फ के माध्यम से कोई चीज देखेंगे तो हरी चीज भी आपको सफेद दिखाई देगी, लाल भी सफेद दिखाई देगी. इसीलिए वो कह रहा कि मेरे सामने स्ट्रेंजनेस आ गई है. स्ट्रेंजनेस का मतलब विच इज विच इज द नॉट द नॉर्मल. जो नॉर्मल नहीं होता वो स्ट्रेंज हो गया. तो जो नॉर्मल साइट उसके सामने है वो दिखाई नहीं पड़ रही है. बर्फ की गिलास से देखने के कारण उसको हर एक चीज सफेद दिखाई पड़ रही है और उसका जो विजन है वो स्ट्रेंज हो गया है, अजीब हो गया. अपन कोई अगर रंग बिरंगा अपन चश्मा पहने तो हमें क्या लगेगा? पूरा बाहर का वातावरण थोड़ा अजीब लगेगा. और जब अपन चश्मा खोल देंगे रंग बिरंगा तो नजारा सही हो जाएगा. उसी तरह कवि के साथ भी यही हो रहा है. व्हेन ही लुक through the pane of glass he find strangeness in front of his eyes. I skimmed. skimmed का मतलब क्या होता है? कोई चीज होती है उसके ऊपर से अपन ऐसे हाथ लेके ऐसे परत उठाते हैं. या आपने किसी पंछी को पानी के ऊपर उड़ते हुए देखा होगा, पानी के ऊपर ऊपर चलता है वो. और अपन मान लो कोई दूध वगैरह है उसके ऊपर से अपन मलाई हटाते हैं तो उसको स्किम कहा जाता है. तो उसने वो जो कांच का जो टुकड़ा है कहां से उठाया? पानी की कुंड के ऊपर से उठाया. और वहां पर विंटर का मौसम है, ये ध्यान में रखिए, इसीलिए वहां विंटर में बर्फ जमती है. आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग. आज की सुबह मैंने वो नजारा देखा, मैंने एप्पल पिकिंग की. मीन्स अभी दोपहर का समय चल रहा है वहां, और ये काम उसने सारा सुबह किया. ही हैड बीन पिकिंग एप्पल and he looked through the pane of glass in the morning from the drinking trough. और ये कहां से उठाया उसने बर्फ का टुकड़ा? ड्रिंकिंग ट्रॉफ से. ट्रॉफ जो पानी का कुंड होता है जिसको अपन नांद भी कहते हैं, जहां से भी जानवर वगैरह पानी पीते हैं, इसको अपन कुंड कहेंगे. ये ट्रॉफ, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रॉफ होगा. And held against the world of hoary grass. होरी का मतलब सफेद, होरी ग्रास यानी कि उसको घास भी सफेद दिखाई दे रही. क्यों? क्योंकि उसने बर्फ के कांच के माध्यम से उसने देखा, इसीलिए उसको घास भी सफेद दिखाई दे रही है. It melted. और बर्फ का टुकड़ा जब हाथ में लेते तो क्या होता? धीरे धीरे वो पिघल जाता है. उसके हाथ से भी वो बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा था, वो बर्फ का कांच पिघल गया. एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक. और कवि ने उस बर्फ के टुकड़े को अपने हाथ से नीचे गिरने दिया और नीचे गिरते ही वो बर्फ का टुकड़ा टूट गया. But I was well upon my way to sleep before it fell. But he was feeling so sleepy that he says that he was going to sleep before the pane of glass fall to the earth. जमीन, वो जो ये देखिए उसका अनुमान लगाए कितना वो स्लीपी फील कर रहा है. वो कह रहा है कि मेरे हाथ से ये कांच का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा गिरकर जमीन पर गिरेगा उससे पहले ही मैं सो जाऊंगा. Means he is very much tired, overtired and feeling very much sleepy. यहाँ ये भी अपन कह सकते हैं कि आदमी जब इस धरती पर आता है तो काम करते करते इतना थक जाता है कि इस दुनिया को छोड़कर जाने की चाह रखता है. और यही मैसेज पोएट इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है. Means upon my way to sleep before it fell and I could tell. The poet says that I can tell you. What he want to tell us? What form my dreaming was about to take. The poet says that now I am going to sleep and
I can tell you before I sleep that what kind of dream I will have in my dream. मैं आपको मेरे नींद आने से पहले ही मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे सपने में किस तरह के ख्वाब आएंगे. Because he very well knows, he is very much obsessed with the apple picking, that he knows it very well that only apples will appear in his dream. That's why he says that upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. I can tell you what will I dream when I will be in sleeping position. And what kind of dream he will have in his sleep? Magnified apples appear and disappear. बड़े बड़े सेव, उसके सपने में बड़े बड़े सेव आएंगे और गायब आ जाए होंगे. कुछ बड़े बड़े सेव दिखाई देंगे, वो गायब होंगे, और फिर कुछ दूसरे एप्पल्स उसके ख्वाब में आएंगे. क्योंकि हम जो काम हम रात दिन करते रहते हैं, वही चीज हमारे सपने में आती है. कई बार हम कहते हैं ना कि हमें सपने में वो दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया. एक्चुअली हमारे ख्वाब में, सपनों में वही चीज आती है जो हमने जिंदगी में कभी देखी हो या जिसके बारे में हमने कभी सुना हो. और जिस चीज के साथ हम हमेशा रहते हैं, ज्यादातर हमें ख्वाब उसी चीज से रिलेटेड आते हैं. कवि दिन भर एप्पल पिकिंग के काम में बिजी है, इसीलिए उसको सपने में भी क्या दिखाई देंगे? बड़े बड़े एप्पल दिखाई देंगे. दे विल अपीयर एंड डिसअपीयर, अपीयर एंड डिसअपीयर. स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, कभी उसको सेव का स्टेम दिखाई देगा. स्टेम जो तना होता है, जहां से अपन उसको पेड़ से तोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं जिस तने से वो पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है. एंड ब्लॉसम एंड, और वो जगह जहां से वो प्रगति करता है, तो उसको बड़े बड़े एप्पल दिखाई देंगे. एंड एवरी फ्लैग, या फ्लैग का मतलब स्पॉट होता है, और स्पॉट का मतलब कोई धब्बा. और रशिट का मतलब होता है रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर, एकदम लाल और ब्राउन दोनों मिक्स जब कलर होता है तो उसको अपन रशिट कहते हैं. तो उसको सपने में दिखाई दे रहा कि एप्पल जो है लाल लाल, उनके ऊपर लाल लाल निशान है एप्पल के ऊपर, और इतने सुंदर एप्पल उसके ख्वाब में आएंगे. अभी नींद आई नहीं है उसको, लेकिन नींद से पहले ही वो हमें बता रहा है कि उसको किस तरह के ख्वाब आएंगे. शोविंग क्लियर, और वो लाल लाल धब्बे एप्पल के उसको साफ साफ दिखाई देंगे. माई इन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड. और उसको नींद में भी उसका जो इन स्टेप आर्क होता है, देखिए जो इन स्टेप, जो हमारा जो पांव होता है जहां बूट पहनते हैं, तो जो एंकल और जो टो नेल के बीच का जो एरिया होता है, जो उसको इन स्टेप कहते हैं. तो टो नेल और एंकल के बीच का ऊपरी हिस्सा इन स्टेप कहलाता है, और जो नीचे जो एडी से लेकर जो टो नेल के नीचे जो एकदम धनुष की तरह जो आकार है पेड़ जो पांव का, वो आर्क कहलाता है. और हम जब कोई भी काम करते हैं तो पैर के उसी हिस्से का यूज लेते हैं ताकि अपन किसी चीज के ऊपर खड़े रह सकते हैं. और लगातार सीढ़ियों के ऊपर एक लकड़ी के सहारे खड़े होने के कारण उसके पांव में दर्द हो रहा है. ना केवल दर्द हो रहा है, बल्कि उसको प्रेशर फील हो रहा है, वहां पर पांव के नीचे उसको दबाव भी फील हो रहा है. तो कवि कहना चाह रहा है कि एप्पल पिकिंग के कारण उसके पांव में दर्द हो रहा है, प्रेशर हो रहा है. किसकी वजह से? ऑफ लैडर राउंड, गोल गोल जो सीढ़ी है, जो डंडा है, उसके ऊपर खड़े होने की वजह से उसको दर्द हो रहा है. I feel ladder sway as the boughs bend, and the poet says that in my dream I see that the ladder that I left against the tree is swaying. Why it sways? Because when the wind blows, the boughs of tree also move from here and there, and with the movement of the boughs, the ladder also makes movement, and he can feel this movement in his dream also, which he will going to have in his sleep, which he is not enjoying at the present time, which he will have in the coming time. Ladder round, I feel ladder sway. Sway का मतलब हिलना ऐसे. As the boughs bend, जैसे ही वो बाउस बैंड होती हैं,
पानी जो लकड़ी की जो सीढ़ी है वो भी हिलती है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम सेलर बिन। सेलर बिन बॉक्स होता है, अपन इसको बॉक्स कहेंगे, लकड़ी का जो ऐसे बॉक्स होता है जिसमें एप्पल वगैरह आते हैं, उसको सेलर बिन कहा जाता है। और कवि कह रहा है कि मैं अपने सपने में सुन रहा हूं कि जो मैंने एप्पल तोड़े हैं वो एक के बाद एक, जो पेड़ के पास बॉक्स रखा है एप्पल को कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर एप्पल एक के बाद एक पेड़ से टूटकर उसके अंदर गिर रहे हैं। और उसके अंदर गिरने की वजह से इट प्रोड्यूसेस रमलिंग साउंड, गड़गड़ की आवाज आती है ना, जब कोई चीज अपन एप्पल डालेंगे बॉक्स से, गड़ 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 इस तरह से आवाज आएगी। एंड द पोएट हियर्स द रमलिंग साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एप्पल्स being fallen into the cellar bin. So when the apples fall into the cellar bin, these produce rumbling sound, and the poet can hear this sound even in his dream also. Of load on load, और ऐसा नहीं कि एक दो एप्पल या कुछ 8-10 एप्पल उस बॉक्स में गिर रहे हैं, लोड के ऊपर लोड, दबाव के ऊपर दबाव, खूब सारे एप्पल्स उस बॉक्स के अंदर गिर रहे हैं। और उसकी आवाज सुनकर कवि को बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऑफ एप्पल्स कमिंग इन फॉर आई हैव हैड टू मच। द पोएट सेज दैट आई एम ओवर टायर्ड बिकॉज आई हैड डन वर्क बियॉन्ड माई लिमिट एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क एनी मोर बिकॉज माई बॉडी डजंट सपोर्ट my action. I want to stop this work. I want to give some rest to my body and I want to have some sleep. But even in his sleep, he thinks only of the work being done by him. He hears the rumbling sound of the apples which fall into the cellar bin. For I have had too much of apple picking. He is done with the work. Which kind of work? Of apple picking. Here the poet describes this action which shows the daily routine. A person is engaged in the daily work for his livelihood, and through this sort of livelihood he wants to show the work, the desire of a normal person through this simple poem, but it is very meaningful from inside. Of apple picking I am overtired of the great harvest. हार्वेस्ट होती है जो बड़ी फसल होती है और उसको जो काटने का वक्त आता है वो हार्वेस्ट कहलाता है। I myself desired. Who told the poet to start this kind of work which he is overtired of now? He himself desired to do this work of apple picking, and now he himself wants to stop this work. There were 10,000 fruit to touch. और वहां पर 1, 2, 10, 20 या 100 सेव नहीं थे, हजारों सेव थे। देखिए दिस काइंड ऑफ वर्क 1000, 10,000 and 1000। अपन कहते हैं ना हजारों सेव देखे, ऐसा तो था नहीं कि वहां हजारों थे। तो ये हाइपरबोली कहलाती है। हाइपरबोली का मतलब होता है एग्जैजरेशन, जब किसी चीज को हम बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। जब हम कहते हैं कि राम और सुरेश इतना लड़े कि खून की नदियां बह गई, तो यहाँ खून की नदियां ऐसा नहीं कि वर्बली या लिटरली नदियां बह रही हो, लेकिन किसी चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने के लिए, टू मेक समथिंग और समबडी मोर इंपॉर्टेंट देन इट और ही इज एक्चुअली इज। When we want to show somebody or something more important than it or he is actually is, this kind of action is called exaggeration, hyperbole. 1000 fruit to touch, और कवि को सपने में आ रहा कि हजारों सेव बिखरे हुए हैं, हजारों सेव को वो टच कर सकता है। चेरिश इन हैंड, चेरिश होता है किसी को हाथ में रख के एकदम खुश होना। लिफ्ट डाउन, और जब वो एप्पल टूटते हैं पेड़ से तो कवि उनको अपने हाथों में बड़े प्यार से उसको पकड़ता है और धीमे से फिर उसको बॉक्स के अंदर रखता है। क्यों धीमे से रखता है? एंड नॉट लेट डाउन, क्योंकि एप्पल के जो एप्पल है वो पेड़ से टूटकर जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। अगर वो जमीन पर गिर गए, फॉर ऑल डेट स्ट्रक द अर्थ, मीन्स जो एप्पल सीधे जमीन पर गिर जाते हैं, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ नॉट ब्रूस्ड, या ब्रूस्ड का मतलब चोट लगना होता है,
और चोट लगने का मतलब एप्पल ऊपर से छिल जाना। और स्पाइक्ड विद स्टबल, स्पाइक का मतलब कोई तीखी चीज किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु में घुस जाना। और स्टबल जो जमीन के ऊपर छोटे छोटे जो ठूट होते हैं ना तिनके टाइप, वो स्टबल कहलाए, ऐसे जमीन पर गड़े हुए रहते हैं। जब खेत के अंदर से फसल काट दी जाती है और उसकी जो जड़ समेत थोड़ा सा ठूट जमीन में बस जाता है तीखा तीखा, उसको स्टबल कहा जाता है। क्योंकि अगर एप्पल जमीन पर गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसके ऊपर चोट लगी हो, वो ऊपर से छिला हुआ हो या नहीं, उसके अंदर कोई चीज तीखी चुभी हुई हो या नहीं, जमीन पर गिर गया मतलब वो एप्पल खाने के लिए काम नहीं आएगा। फिर कहां काम आएगा वो? वेंट श्योरली टू साइडर प्रेस, फिर वो साइडर प्रेस हीप में चला जाएगा। जो एप्पल्स हाथ से कैच करके सीधे बॉक्स में रखते हैं वो खाने के लिए काम आता है, और जो जमीन पर गिर जाते हैं उससे जूस बनाकर पीने के लिए काम आता है। इसीलिए जो जमीन पर गिर जाता है उसको साइडर प्रेस हीप, एक अलग सेव का ढेर है, जो जमीन पर गिर जाते हैं उनका अलग ढेर बना दिया जाता है ताकि उसको साइडर प्रेस में भेजा जाए। साइडर प्रेस ताकि उसका जूस निकाला जा सके। एज ऑफ नो वर्थ, क्योंकि जो जमीन पर गिर जाएगा एप्पल उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल द स्लीप ऑफ माइंड वॉट एवर स्लीप इट इज। नाउ द पोएट इज गोइंग टू स्लीप बट ही सेज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम ट्रबल विच इज श्योरली गोइंग टू डिस्टर्ब माई स्लीप। एंड who or what will disturb his sleep? Even he himself doesn't know. This sleep of mine, whatever sleep it is, वो कह रहा है जो नींद में लेने जा रहा हूं वो किस प्रकार की नींद है, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार की नींद में लेने जा रहा हूं। Were he not gone, या ही का मतलब woodchuck, were he not gone the woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on or just human sleep। अगर वुडचक यहां रहता, वे वुडचक कौन है? वुडचक एक छोटा सा जीव होता है जो विंटर के मौसम में रहता है, या हम ये कह सकते हैं ठंडे प्रदेशों में रहने वाला एक जीव होता है जो वुडचक होता है, उसका नाम वुडचक है। तो जो ठंडे प्रदेश के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि कई महीनों तक सोते रहते हैं, वहां सर्दी तेज रहती है और उस सर्दी में कई महीनों तक सोते रहते हैं। तो अगर वुडचक यहाँ होता, कवि कह रहा है कि अगर वुडचक यहाँ होता तो वुडचक बता पाता कि मेरी नींद किस प्रकार की है। क्या मेरी नींद वुडचक की तरह है जो शीत ऋतु में लंबे समय तक सोता रहता है, या फिर आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन जस्ट ह्यूमन स्लीप, मानवीय नींद, ह्यूमन, क्या मेरी नॉर्मल इंसानों वाली नींद है जो मैं लेने जा रहा हूं, या मेरी नींद उन जानवरों की तरह है जो शीत ऋतु में सोते रहते हैं। These two kinds of sleep he mentioned in this poem, but there is a third kind of sleep is also, and we all of us know, and which is that sleep? That is the death, because death is the permanent sleep that all of us will surely have in our life at the end और एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ कवि दो प्रकार की नींद की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो नींद में लेने जा रहा हूं हो सकता है वो वुडचक की नींद की तरह हो, जो वुडचक शीत ऋतु में सोता रहता है वैसी नींद हो, मैं लंबे समय तक सोता रहूं, या फिर मेरी नींद इंसानों की तरह होगी जो रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, या परमानेंट नींद होगी। यहाँ परमानेंट नींद का मतलब है मौत, means there is also a hidden desire in his heart to receive death so that he can put end to all the work being done on this earth. So students, here we studied that this poem after apple picking written by Robert Frost included in his second volume of poems North of Boston. He was American poet. He is known for his deceiving simplicity, and this is a pastoral poem set in New England, and through this poem he shows the daily work
to gain livelihood. And through this poem, he describes two kinds of sleep, whether it is the sleep which the woodchuck enjoy in the winter sleep or some kind of human sleep. And when we say that it is allegory, then we can mention another kind of sleep, attach the death also to this sleep, because everyone on this earth wants to be free from the miseries, from the sufferings on this earth, and who can help us to get rid of this kind of miseries? Only death can put end to these kind of sufferings. Because in his another poem, Birches, there he also has shown his desire to reach the heaven, but before he reaches the heaven, he again wants to come back on the earth. So when we see, when we understand the first line, that my two long pointed ladder sticking through a tree and toward heaven hill, कि मेरी जो सीढ़ियों के दोनों जो हिस्से हैं वो हेवन की तरफ है, या उसके हेवन की तरफ मतलब उसकी डिजायर है हेवन की तरफ जाने का। और हेवन की तरफ वो कैसे जाएगा? ओनली व्हेन ही डाइज, केवल मौत के बाद ही जाएगा। सो थ्रू दिस अ वेरी सिंपल पोएम, he beautifully expresses the pastoral quality of this poem and also the daily work to gain the livelihood, and he also presents the strangeness which he got through looking into through the pane of the glass, which he got from the drinking trough. Drinking trough, I have already told you that it is a kind of vessel used to collect the water from which animals can drink water. So students, I hope you got the meaning of this poem, and still you find any problems, you may contact me. Thank you very much.